Hello everyone, this is Hitesh Mehta. I welcome you all to this channel. Today we are going to solve some JEE PYQs on the topic sequences and series. So without any further ado, let us begin. First question is, if A1, A2, A3 and up to AN are the terms in a AP and A1 plus A4 plus A7 up to A16 is equal to 114, then we have to find the value of this expression. So let us note down every small piece of information given in this question. Okay, it is given that A1, A2, A3 and up to AN are in AP. What else is given to us? A1 plus A4 plus A3 A7 and up to A17 is equal to 114. Let us note it down. A1 plus A4 plus A7 up to A16 is equals to 114. अब हम क्या करते हैं? Let us assume A1, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं ए. ऑफ कोर्स ए पहली टर्म, फर्स्ट टर्म ए. A4 विल बी जनरल टर्म्स में वी हैव टू चेंज इट. ओके, इट विल बी ए प्लस 3D. ओके, नाउ दिस A7 will be a plus 6D dot. Okay, up to A16 will be a plus 15D equals to 114. Now if you see how many terms are there in this, we can clearly see A1 1 2 3. next term will be plus 3 यानी 10th term. ओके, यहाँ से देखो, फर्स्ट टर्म के बाद लिया है हमने फोर्थ टर्म यानी प्लस 3 कर रहे हैं. फोर्थ टर्म के बाद लिए है सेवेंथ टर्म, अगेन प्लस 3. सेवेंथ टर्म के बाद विल टेक 10th टर्म, अगेन प्लस 3. ओके, तो 10th टर्म तक हमारे 4 टर्म्स हैं. देन 10th के बाद 13th टर्म प्लस 3. ओके, देन 13th टर्म के बाद फाइनली 16th टर्म. तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर टोटल? 5 ये 4 ये प्लस 2 इनके बीच में 10th एंड 13th टर्म. टोटल देयर आर 6 टर्म्स. सो ए 6 टाइम्स ए, इट विल बी 6A. एंड नाउ दिस 3D plus 6G plus again 9D, because in the middle of this it will come a 10th, so it will be a plus 9D. Then again 12D plus 15D equals to 114. Now if you see, this is an AP again. Now let us take 3D common. It will be 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Okay, equals to 114. Now 6A plus 3D. Apply the formula of sum of first n natural numbers. It will be n into n plus 1 by 2, which will be 15 here. 6A plus 15 3 ja 45D equals to 114. So 3A plus 15D. Okay, 3A, no sorry, I'm sorry, 2A. If we divide both sides by 3, we'll get 2A plus 15D will equal to 38. Okay, so we have got this equation. 2A plus 15D equals to 38. Now let us हम इसको स्टोर कर लेते हैं. लेट अस स्टोर दिस इक्वेशन. ओके, एंड we'll see where it will be applied. So now what else was given in the question? We have to find the value of this expression, A1 plus A6 plus A7 plus A16. Okay, so let us write it. Let us note it down. A1 plus A6 plus A11 plus A16. We have to find the value of this expression. Okay, let us convert it to the general term. A plus 5D plus A plus 10D plus A plus 15D. Okay, so it will be equal to 4A plus 5 15, 5 plus 10 15 plus 15, it will be 30D. So it will be 2 into 2 times 2A plus
15d. Now you can see that we have derived, हमने 2a plus 15d एक्सप्रेशन जो है इसकी वैल्यू हमने पीछे ही हमें क्वेश्चन में मिल गई थी. See, we have derived the value of 2a plus 15d. It is 38. Simply put this value here, 2 into 38. So the answer is simply 76. This is our correct answer. Okay, so we'll mark this question. We'll mark this answer. So B is the correct answer. Now let us move to second question. There is another question of 2019 JEE Mains. It is given in the question that the 19th term of a non-zero AP, 19th term A19 is equal to 0. ओके, इट इज़ गिवन, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि A19 इज 0, यानी 19th टर्म विल बी 0. सो सिंपली इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं. A plus 18d equals to 0. So A is equals to minus 18d. Okay, we have this. A is equal to minus 18d. Now let us see what has been asked in the question. Okay, it is asking then its 49th term is to 29th term will be what? So let us write this. It is asking to us that find the ratio of the 49th term is to 29th term. अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो it will be A plus 48d equal to divided by 20a plus 28d. Okay, now अब क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. बस सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ a minus 18d plus 48d divided by minus 18d plus 28d. It will be equal to 30d divided by 10d. So the answer is just 3:1. So let us mark the answer. The correct answer is option D, 3:1. So now let us proceed to our third question. So let us read this question first. It is given if a belongs to 0 to pi by 2. A जो है हमारा वेरिएबल है, it belongs to 0 से pi by 2. Both not included. 0 is not included as well as pi by 2 is not included in this interval. Then this expression root of x square plus x plus tan square alpha divided by root of x square plus x is always greater than or equal to. Now अब आप सोच सकते हो कि ये तो हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब अचानक से ये भयानक से एक्सप्रेशन और ये ट्रिग्नोमेट्री ये कहाँ से आ गई. बट ट्रस्ट मी, अगर आपको सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एक कॉन्सेप्ट विच इज AM इज ग्रेटर दैन इक्वल टू GM, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, और अगर आपको इस क्वेश्चन में ये स्ट्राइक कर गया तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकेंड्स का है ये क्वेश्चन. ओके, सो लेट अस proceed to the solution. Okay, now these are two, let us consider this expression to be let कर लेते हैं हम इसको root of x square plus x equal to let it be some t. Okay, let it be some t, and let tan square x by root of x square plus x be some u. Okay, now these are our two numbers. So if we apply this condition, AM is greater than equal to GM, first of all पहले हमें ये सोचना पड़ेगा क्या हम इसको अप्लाई कर भी सकते हैं इस क्वेश्चन में. व्हाट इज द कंडीशन? बोथ ऑफ द नंबर्स जिनका हम AM और GM निकाल रहे हैं, दे मस्ट बी ग्रेटर दैन 0. ओके, दे मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 मतलब दे मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, सॉरी, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए. देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस कंडीशन. नाउ अगर हम देखें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या आपको लगता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा? इज इट पॉजिटिव? कहीं ये नेगेटिव वैल्यू तो नहीं दे देगा? अगर नेगेटिव दे देगा तो हमारी वो कंडीशन ही फेल हो जाएगी, क्योंकि इट स्टेट्स दैट अगर AM और GM वाली कंडीशन लगानी है, AM इज ग्रेटर दैन इक्वल टू GM रिलेशन लगाना है, तो दोनों नंबर हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए. नाउ
both of these numbers t and u are positive. Why? Because this is a square root function. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, और स्क्वायर रूट फंक्शन से हमेशा क्या मिलती है वैल्यू? इट ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव वैल्यू. स्क्वायर रूट फंक्शन नेवर गिव्स यू अ नेगेटिव वैल्यू. तो यस, वी कैन से दैट आर टी, जो हमने इस नंबर को लेट किया है, लेट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने इस नंबर को लेट किया है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ व्हाट अबाउट दिस? Do you think this will always be positive also? Yes, this will be positive. क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर में है वो तो tan स्क्वायर अल्फा है. इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है. अब नेगेटिव नंबर का भी -3 का स्क्वायर निकालोगे तब भी वो 9 ही आएगा. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट दिस डिनोमिनेटर? ऑफ कोर्स अगेन हमारा टी भी तो पॉजिटिव ही था ना, ये भी तो यही है, सेम ही तो है ये दोनों, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है और ये स्क्वायर फंक्शन है, तो दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. बस अब हम अप्लाई कर देते हैं अपनी वो रिलेशन, ए एम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम. ओके, व्हाट इज द ए एम फॉर दिस? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2. ये हो जाएगा ए एम. Arithmetic mean it is greater than equal to the gm. What will be the gm? Root of x square plus x into tan square alpha divided by x square plus x. And don't forget you have to take the square root. ठीक है, क्योंकि अगर दो नंबर a और b हों तो उनका gm होता है root of ab. Okay, it is root of ab and am is a plus b by 2. ओके, हमने यहाँ पर भी यही किया है, ठीक है. तो बस सिंपली देखो, ये तो हमारा एक्सप्रेशन ही है, टी प्लस यू है ये हमारा, ठीक है. हमें टी प्लस यू की वैल्यू फाइंड करनी है. डिवाइड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये तो कट गया हमारा, कट गया ये तो बिल्कुल. और यहाँ पर क्या बचा? रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा. सिंपली रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा, of course it will be a positive value. It will always give you a positive value क्योंकि ये जो है ये रूट स्क्वायर रूट फंक्शन है. तो बस यहाँ पर tan अल्फा आ गया, तो t प्लस यू, उसको 2 को उधर भेज दो, 2 tan अल्फा. तो बस यही हमें पूछा था. t प्लस यू यानी जो हमारे ये वाला फंक्शन है, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 2 tan अल्फा. तो बस सीधा बस एक्सप्रेशन बस आंसर को मार्क कर दो. तो आंसर इज ऑप्शन ए 2 tan अल्फा एंड इट वाज अ 2003 JEE क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव फर्दर टू द फोर्थ क्वेश्चन. Fourth question states that it is a 1991 question. Okay, the product of n positive numbers is unity. Let us assume कि n जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो है a1, a2, a3 एंड अप टू an. ओके, ये हमारे जो हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है. Let us assume. Now is unity मतलब 1. Unity मतलब 1. Okay, then their sum is a positive integer divisible by n equal to n plus 1 by n or and never less than n. ठीक है, हमें we have to figure out this question. Now it is given that a1 into a2 into a3 up to an is equal to 1. This is given to us. Now ये क्वेश्चन भी उसी कंडीशन से होगा जो पिछले क्वेश्चन में लगी थी. क्या कंडीशन लगी थी? am is greater than equal to gm. ये वाली जो ट्रिक है, ये वाली जो मतलब रिलेशनशिप है ना, इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. इससे इतने सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मतलब हलवा बन जाते हैं ना, और मतलब उनको बस हलवा खा लो बस. अब इस ट्रिक ने तो ये बोल दिया मैं हलवा बना के दे दूंगी, तुम खा लो बस. अब बस हलवा खाना है हमें, देख लो अब इस ट्रिक को लगाकर. बस यहाँ पर क्या है, am क्या होगा इन सारे नंबर्स का? व्हाट इज am? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइडेड बाय n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू द gm. व्हाट इज gm?
रूट ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a3, सॉरी nth रूट ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an. ओके, अप टू an. नाउ अब हमें क्वेश्चन में एक ये चीज़ दी हुई थी कि प्रोडक्ट इज 1, तो दिस विल बी 1. ठीक है, 1 का तो कोई भी रूट निकालो 1 ही आएगा, है ना. 1 का तो nth रूट बोला है, तो इट विल बी 1. नाउ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an. इस n को उधर ले जाओ. why n को हम उधर क्यों ले जा सकते हैं? बिकॉज n विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. अब आप इतना तो बोल नहीं सकते ना कि मैंने -3 नंबर्स लिए हैं, मैंने -5 नंबर्स लिए हैं. नंबर ऑफ नंबर्स तो ऑलवेज भी पॉजिटिव ना, तो इसको n को उधर ले जाओ, बस इट विल बी सिंपली ये वाली हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई कि द सम ऑफ द नंबर्स सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू n. अब लेट अस फिगर आउट द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था. The sum is a positive integer. n is a positive integer. Okay, but यहाँ पर देखो sum जो है वो n से बड़ा भी हो सकता है, n is definitely a positive integer. बट जो सम है, सम उससे बड़ा भी हो सकता है. मतलब सपोज n है 5, तो सम कुड बी 5.1, 5.22, 5.3, 5.5, सम कुड बी एनीथिंग. ठीक है, सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट. नो, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. डिविजिबल बाय n, इज इट सो? डिविजिबल बाय n होगा पक्का. देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या था, सम डिवाइडेड बाय n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. यानी 1 अगर इक्वल टू 1 होता तो वी कैन से सम इज डिविजिबल बाय n, बट यहाँ पर ग्रेटर दैन भी है, मतलब ये इसका आंसर सम बाय n का आंसर 1.5 भी आ सकता है. ठीक है, 1.5 भी आ सकता है, तो नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय n. नाउ सम इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय n. नो, डेफिनेटली नॉट. क्या बचा? नेवर लेस देन n. बिल्कुल सही. यहाँ पर देख लो, सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू m. सम हमेशा n से बड़ा या बराबर होगा, कभी छोटा नहीं होगा. बिल्कुल, आप वैसे डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको देखकर, सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, बट मैंने आपको हर ऑप्शन का रीज़न बता दिया कि क्यों नहीं होगा. क्योंकि कई बच्चे, सम स्टूडेंट्स माइट थिंक कि अ पॉजिटिव इंटीजर भी ऑप्शन हो सकता है. ओके, अ पॉजिटिव इंटीजर भी ऑप्शन हो सकता है करेक्ट, बट नहीं होगा. मैंने आपको रीज़न बता दिया है. ओके, now moving to our fifth question, let us read it. This is a 2004 JEE question. Okay, an infinite GP has first term x. Okay, first term जो है उसका x है and sum equal to 5. Then x belongs to which of these intervals? Okay, we have to find this answer. So हमारे पास दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म हमारा x है. ओके, लेट द कॉमन डिफरेंस बी r. लेट कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस बी r. नाउ इट इज गिवन दैट द सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी इज 5. सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी का क्या फॉर्मूला होता है? x बाय 1 माइनस r. सम फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस द कॉमन डिफरेंस. ओके, एंड इट इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से क्या मिल गया? x इक्वल्स टू 5 माइनस 5r. ठीक है, 5 माइनस 5r बोल लो या फिर 5 इंटू 1 माइनस r बोल लो, वट एवर यू मे से. नाउ अब इसमें पूछा है देन x बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स. अब यहाँ पर इंटरवल्स जैसी तो कोई चीज़ दिख नहीं रही, यहाँ तो इक्वेशन आई है, हमें तो इनइक्वालिटी चाहिए. तो इनइक्वालिटी अब कहाँ मिलती है सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी में? वो मिलती है यहाँ कि मॉड्यूलस ऑफ r इज लेस दैन 1. ये कंडीशन होती है हमारी. अगर आपको सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज करना है तो यू हैव टू सैटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी r इज ग्रेटर दैन -1 एंड लेस दैन 1. ओके, यू हैव टू सैटिस्फाई दिस कंडीशन. बस अब क्या करना है, किसी तरीके से x बनाने की कोशिश कर दो. वी हैव टू फॉर्म दिस 5 इंटू 1 माइनस r. सिंपली माइनस, पहले माइनस कर देते हैं तीनों साइड. माइनस कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा. ठीक है, अब क्या, ऐड 1 टू ऑल द साइड्स, 2 1 माइनस r एंड दिस विल बी 0. नाउ मल्टीप्लाई ईच साइड बाय 5, तो यहाँ आ जाएगा 10.
5 इंटू 1 माइनस आर इज ग्रेटर दैन 0. सिंपली ये क्या है, ये है x हमारा, तो 10 इज ग्रेटर दैन x एंड ग्रेटर दैन x इज ग्रेटर दैन 0. सो बस हमारा आंसर देख लो, सिंपली सी ऑप्शन, सिंपली सी ऑप्शन. बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है. बस इस कंडीशन पे बेस्ड था कि मॉड्यूलस ऑफ r इज लेस दैन 1. नाउ मूविंग ऑन टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, लेट अस रीड इट फर्स्ट. 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग GP. 3 नंबर्स हैं जो पॉजिटिव हैं एंड दे फॉर्म एन इंक्रीजिंग GP. सो लेट द नंबर्स बी AR एंड AR स्क्वायर. ठीक है, लेट कर लेते हैं. इफ द मिडल टर्म इज डबल्ड, जब मिडल टर्म डबल किया है हमने 2AR बन गई, देन द न्यू नंबर्स फॉर्म एन AP. द कॉमन रेशियो ऑफ द GP इज व्हाट. ओके, ये जो है दीज आर इन GP. जब इसको मिडिल टर्म को हमने डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, यानी A2AR एंड AR स्क्वायर, दीज आर इन अ GP, सॉरी AP में है. तो बस कंडीशन लगा दो 2B इक्वल्स टू A प्लस C वाली कंडीशन. ठीक है, 2 इंटू 2AR इक्वल्स टू A प्लस AR स्क्वायर. ओके, सो ए कॉमन हो गया तो ए तो पहले ही काट दो. 4AR इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक बन गई. सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. R इक्वल्स टू प्लस 4 प्लस माइनस B स्क्वायर विच इज 16 minus 4AC, okay, by 2A. It will be 2 plus minus 16 minus 4 is root 12. Root 12 will be equal to root 4 into root 3. root 4 का आंसर 2 root 3 आ जाएगा by 2. सॉरी, यहाँ पर 4 आएगा ना, हाँ, तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3. नाउ द क्वेश्चन इज हम कौन सा रेशियो एक्सेप्ट करें. हम इसमें r की 2 वैल्यूज आ रही हैं, 2 प्लस रूट 3 एंड r इक्वल टू 2 माइनस रूट 3. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस विच वन ऑफ देम शुड वी कंसिडर टू बी द करेक्ट आंसर. नाउ ध्यान से सोचो अब. सोचा किसी ने? So the correct answer is r equal to 2 plus root 3. 2 minus root 3 को we will reject because it is given in the question very clearly that the GP is increasing. यानी जो उसका r है it will be इंक्रीजिंग, मतलब r की वजह से ही तो वो इंक्रीज हो रही है ना, r की वजह से तो वो इंक्रीज होगी. सिंस द GP इज इंक्रीजिंग वी कैन नॉट टेक द वैल्यू r इक्वल टू 2 माइनस रूट 3. सो करेक्ट आंसर इज 2 प्लस रूट 3 एंड दिस वॉज अ 2014